Good morning, students. Today we shall discuss about the next part of the story Tilak and Sudhir. तिलक एंड सुधीर। उसका पैर टूट गया था और वह जो है बेड पर रेस्ट ले रहा था और वह अपने आप को अकेला और असहाय महसूस कर रहा था और क्रिकेट मैच के बारे में सोच रहा था। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक हिज फ्रेंड्स came over every evening to cheer him up. But as the date of the match approached, they had less and less time to spare from cricket practice. One evening, Tilak was feeling unusually depressed. His friend had visited him, full of excitement about the impending match. One of them had been selected skipper in Tilak's place. What a shame you cannot play. What a shame you cannot play, they said. We are really going to miss you. Tilak smiled bravely. Never mind, he said, but we must give those modern school boys a real fight. When his friend had gone, Tilak tried hard to fight his tears. He had never felt more disappointed and lonely. Suddenly his mother came into the room. A visitor for you, Tilak. A visitor for you, Tilak, she said. It was Sudhir. He came forward shyly and sat down on a chair near Tilak's bed. I have brought you a book to read, he said. You must be getting bored lying in bed. Tilak picked up the book without much interest. He did not feel like reading, but the cover caught his eyes. It was the picture of beautiful snow-white cheetah called Pippa. He opened the book. It was full of glossy photographs of Pippa and her cubs. The little ones were seen climbing trees, playing, even enjoying a cold drink out of a bottle with a straw. It is a good book. It is a good book, Sudhir said. I think you will like it. He then got up to go. Don't go so soon, said Tilak. Tell me about the book. Sudhir sat down again. He told Tilak the story of Pippa from the time she was cub till she had little cub of her own. When Pippa was only a few weeks old, she was presented to a couple called George and Joy Adamson. Who were they? Tilak asked. George Adamson was the warden of a game sanctuary in Africa, Sudhir told him. Adamson brought up Pippa, and it is Mrs. Adamson who has written the book about her. It must be fantastic to have a cheetah for a pet, exclaimed Tilak. They had a lioness too, as a pet, said Sudhir. Really? Really? said Tilak. तो पहले सप्ताह के दौरान जब वो आराम कर रहा था तो उसके मित्र उससे शाम को मिलने आए। उसके मित्र जो है प्रत्येक शाम उससे मिलने आए, एवरी इवनिंग। लेकिन जो मैच की डेट, जो होने वाली मैच थी, नज़दीक आती गई, उनके पास क्रिकेट का प्रैक्टिस करने का
का अभ्यास करने लगे, इसलिए उनकी संख्या आने की कम हो गई। दे हैड लेस एंड लेस टाइम टू स्पेयर फ्रॉम क्रिकेट प्रैक्टिस। वन इवनिंग तिलक वाज फीलिंग अनयूजुअली डिप्रेस्ड। एक शाम जब तिलक जो है असमान रूप से निराशा महसूस कर रहा था, तो उसके मित्र उसे देखने आए, फुल ऑफ एक्साइटमेंट अबाउट द इम्पेंडिंग मैच। और उस मैच के बारे में, जो इम्पेंडिंग मैच था उसके बारे में पूरा एंजॉय लेकर एक्साइटमेंट के साथ उसको बता रहे थे। उसी में से एक को जो है, जो मित्र थे, क्योंकि तिलक का पैर टूट गया था इसलिए वो जो है खेल नहीं पा रहा था, कुड नॉट प्ले गेम। वन ऑफ देम माइट बी सिलेक्टेड कीपर इन तिलक्स प्लेयर। तो तिलक के स्थान पर उसी में से एक को उस मैच का स्कीपर चुन लिया गया था। उसी में एक बोल रहा है, वे बोले, व्हाट ए शेम यू कैन नॉट प्ले। कितनी दुख की बात है, शर्म की बात है कि तुम खेल नहीं सकते। वे कहे, हम लोग वास्तव में क्या कर रहे हैं, तुम्हें याद कर रहे हैं। हम लोग वास्तव में तुम्हें क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तिलक स्माइल ब्रेवली। तिलक जो है बहादुरी पूर्वक, यानी जिसे ज़बरदस्ती बहादुरी पूर्वक जोर लगाकर मुस्कुराया, कहा कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग अवश्य क्या करो, मॉडर्न स्कूल के जो लड़के हैं उनके साथ तुम्हें वास्तविक फाइट करना पड़ेगा। सचमुच क्या करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। जब उसके मित्र चले गए तो तिलक ट्राइड हार्ड टू फाइट हिज टीयर्स। अपने आंसुओं से लड़ने की कोशिश कर रहा था, यानी उसकी आंख में आंसू आ गए थे। उसने कभी भी, माने ही हैड नेवर फेल्ट मोर डिसपॉइंटेड एंड लोनली, इतना असहाय और अकेलापन महसूस नहीं किया था। सडनली तभी उसकी माँ जो एकाएक उसके कमरे में आई। कहीं एक विजिटर फॉर यू, तुम्हारे लिए एक आगंतुक आया है तिलक। शी सेड, इट वाज सुधीर। वो कौन था, सुधीर था। गेस्ट कौन था, आगंतुक, विजिटर वह सुधीर था। ही केम फॉरवर्ड साइली, वह आया, आगे आया और कहाँ बैठ गया, चेयर पर, तिलक के बिस्तरे के नियर, माने पास। वो एक चेयर वहाँ पर रखी हुई थी, उस पर वह बैठ गया और बोला, क्या बोला कि आई हैव ब्रॉट यू ए बुक टू रीड, तुम्हारे लिए एक पुस्तक लाया हूँ। वी मस्ट बी गेटिंग बोर्ड लाइंग इन बुक, तुम अवश्य ही बिस्तर पर पड़े पड़े क्या हो रहे हो, बोर हो रहे हो, ऊब रहे हो। तिलक पिक्ड अप द बुक विदाउट मच इंटरेस्ट। तिलक ने उस पुस्तक को बिना किसी रुचि के उठाया और वह पढ़ना नहीं चाहता था। डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, लेकिन जो कवर था उसका उसकी आंखों में गड़ गई। कॉट हिज आइज, उसकी आंखों को चकाचौंध कर गई। वह पिक्चर कैसा था, तस्वीर, ब्यूटीफुल, सुंदर स्नो वाइट चीता का, स्नो वाइट चीता का, जिसको पीपा के नाम से पुकारा जाता था। ही ओपेंड द बुक, उसने पुस्तक को खोला। ही ओपेंड द बुक, उसने पुस्तक को खोला। कैसा था पुस्तक, इट वाज फुल ऑफ ग्लॉसी फोटोग्राफ, उसमें चमकदार जो थे फोटोग्राफ थे पीपा और उसके बच्चों के, शावकों को, जो उसके छोटे छोटे बच्चे थे, जो पीपा थे उसके बच्चों को। उसमें से क्या थे कि देख रहा था कि लिटिल वंस, जो छोटे छोटे बच्चे थे, पेड़ पर चल रहे थे, उस पुस्तक में खेल रहे थे। और एक तो क्या था, कोल्ड ड्रिंक के साथ जो है बोतल के साथ एंजॉय कर रहा था, आउट ऑफ बॉटल, तो जो कोल्ड ड्रिंक का बोतल लेकर भी एंजॉय कर रहा था। इट इज़ ए गुड बुक, ये अच्छी बुक है। ये कैसी बुक है, अच्छी बुक है। सुधीर सेड, आई थिंक यू विल लाइक इट। सुधीर ने कहा कि मेरा विचार है कि तुम इसे क्या करोगे, पसंद करोगे। अब ये कहकर जो है वो क्या था, ही देन गॉट अप टू गो, वो जाने वाला था, मतलब बातचीत हो गई थी, पुस्तक देख लिया था, तो उठकर जाने वाला था। तो तिलक ने कहा, डोंट गो सो सून, इतने जल्दी मत जाओ। तिलक ने क्या कहा, भाई इतने जल्दी मत जाओ, और टेल मी अबाउट द बुक, और बुक के बारे में बताओ, बुक के बारे में बताओ। अब सुधीर जो खड़ा था जाने के लिए उठ गया था, वो पुनः बैठ गया। ही टोल्ड तिलक द स्टोरी ऑफ पीपा फ्रॉम द टाइम, उसने तिलक को स्टोरी बताई पीपा की। पीपा यानी जो चीता थी, कब से, जब वो बच्ची थी।
छोटी सी शावक थी, टिल शी हैड लिटिल कप, और उसके अपने बच्चे नहीं थे। माने वो जब वो छोटी बच्ची थी तब से कहानी, उसके बचपन से कहानी। और बताया कि व्हेन पीपा वाज ओनली 5 वीक्स ओल्ड, जब पीपा छोटी थी, उसी सप्ताह की थी, तो उसे प्रेजेंट कर दिया गया था। किसको? एक कपल थे, एक दंपति थे, जिनका नाम था जॉर्ज एंड जॉय एडम्सन। हु वेर दे, ये कौन थे? वेयर दे, वो कौन थे? तिलक ने पूछा। जॉर्ज एडम्सन वाज द वार्डन ऑफ गेम सेंचुरी इन अफ्रीका, अफ्रीका के जो जंगल थे, अभ्यारण्य था, उसके वो जो थे वार्डन थे। सुधीर टोल्ड हिम, सुधीर ने बताया कि जॉर्ज एडम्सन जो थे वो अफ्रीका के अभ्यारण्य के एक वार्डन थे। और एडम्सन ब्राट अ पीपा, एडम्सन ही पीपा को लाए। और उनकी पत्नी मिसेज एडम्सन क्या कर रही थी, उसके बारे में ये पुस्तक लिखी थी। उन्होंने ही वो पुस्तक लिखी। जो पुस्तक मैं तुम्हें दे रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, पुस्तक किसने लिखी? मिसेज एडम्सन ने। इट मस्ट बी फैंटास्टिक टू हैव ए चीता फॉर ए पेट, एक्सक्लेम्ड तिलक। तिलक ने आश्चर्य से मतलब कहा कि एक पालतू के लिए जो है चीता क्या है, बहुत ही शानदार है, फैंटास्टिक है पालतू जानवरों में। दे हैड ए लाइनेस टू एज ए पेट, कह रहे हैं कि उनके पास क्या है, शेरनी भी है, पेट के रूप में एक शेरनी भी है। कह रहा रियली, वास्तव में? सेड तिलक। थैंक यू।